بتائیے اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کون سی صورت میں کہا گیا ہے؟ سورہ کہف میں۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کس پیغمبر کی قوم پر عذاب آیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ بتائیے اولاد کا کون سا عمل ماں باپ کے لیے بخشش کا سبب بن جاتا ہے؟ ہر نیک عمل۔ وہ کون سی چیز ہے جو کافر اور مسلمان میں واضح فرق کرتی ہے؟ نماز۔ کافر جہنم میں کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ گدھے کی۔ وہ کون سا جانور ہے جو اللہ پاک کی راہ میں 2 بار قربان ہوا؟ مینڈا جانور۔ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے صحابی رسول کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی عورت ہے جو بغیر والدین کے پیدا ہوئی؟ حضرت اماں حوا علیہ السلام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جوتے سب سے پہلے کس نبی نے پہنے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس جانور کو مارنے سے انسان کا رزق کم ہوتا ہے؟ چیونٹی کو۔ بتائیے مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کو ادا کرنے سے چہرے پر نور آتا ہے؟ فجر کی نماز۔ بتائیے وہ کون سی عورت ہے جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جس کا شوہر ناراض ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کا خطبہ کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ مسجد نمرہ میں۔ بتائیے وہ کون سا کبیرہ گناہ ہے جس کی توبہ نہیں ہوتی؟ خودکشی کی۔ بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کی پوجا کرتی تھی؟ ستاروں کی۔ بتائیے وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے؟ روزے کی۔ وہ کون سا پاک اور صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ چوری کیا ہوا کپڑا۔ ایسا کون سا وقت ہے جب انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ موت کے وقت۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کس چیز کی عبادت کرنا چھوڑ دیا؟ بت پرستی۔ کون سی کتاب نہ پڑھنے والا قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا؟ قرآن مجید۔ بتائیے مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع کیا گیا ہے؟ پیاز اور لہسن۔ بتائیں کہ بیوی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جھوٹ بولنا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پرانی نظر بد کی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ بار بار پیشاب کرنا۔ پڑوسی کو ستانے والا قیامت کے دن کس شکل میں اٹھے گا؟ بنا ہاتھ پاؤں کے۔ بتائیے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان سے پہلا وعدہ کس چیز کا لیا جاتا ہے؟ نماز کا۔ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ 3 مرتبہ۔ قیامت کے دن کون سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے؟
गुनाहगार लोग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र में बोलना शुरू कर दिया था? पैदा होते ही। कौन सी चीज दिल से एक दफा पढ़ने से जहन्नुम से निजात मिलती है? कलमा तैयबा पढ़ने से। हदीस पाक में किस बीमारी को इंसान के लिए अजाब कहा गया है? ताउन की बीमारी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर रुकी थी? जूदी पहाड़ पर। एक हराम का लुकमा खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? 40 दिन की। बेपर्दा और नापाक रहने वाली लड़की किसको ज्यादा पसंद होती है? जिन्नात को। क्या आप जानते हैं मुसलमानों का जन्नत में किसके साथ निकाह होगा? दुनियावी बीवी से। शादी करने के लिए लड़की में सबसे पहले क्या देखना चाहिए? शर्मो हया। अगर औरत नामहरम के साथ भाग जाए तो उसे कत्ल करना जायज है? जायज नहीं। बताइए वो कौन सा कपड़ा है जिसे मर्दों के लिए पहनना हराम है? रेशमी कपड़ा। सबर जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ये किसका कौल है? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का। किस नमाज में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? तहज्जुद की नमाज। किन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा बंद कर दिया है? मरने वालों के लिए। वो कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई नेकी कबूल नहीं होती? शिर्क करना। वालिदैन की नाफरमानी करने वाले को किस चीज की खुशबू तक नहीं आएगी? जन्नत की। वो कौन सा मुसलमान है जो जिस तरफ चाहे मुंह करके नमाज पढ़ सकता है? वो मुसलमान जिसको खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिले तो वो जिस तरफ चाहे रुख करके नमाज अदा कर सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब सबसे पहले किसको सुनाया था? अपने वालिद को। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के निकाह का खुतबा किसने पढ़ाया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो किसकी कब्र है जिस पर हर गुजरने वाला कब्र पर पत्थर मारता है? यजीद की। अल्लाह ताला की कसम खाने का जिक्र कुरान मजीद में किस पारे में मिलता है? आखिरी पारे में। किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है? अनार। अगर आपको अचानक घर से खुशबू आए तो ये किस चीज की अलामत है? नेक जिन्नात की हाजिरी की। क्या आप जानते हैं लड़की के जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गुनाह करता है? जुबान। कौन सी
बुराई अगर जरा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। गरूर और तकब्बुर। क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद में किस पत्थर का जिक्र आया है? मरजान पत्थर का। वो कौन सी नमाज है जो आधी पढ़ लें लेकिन सवाब पूरी नमाज का मिलता है? सफर में नमाज। क्या आप जानते हैं मर्द का नींद में बोलना किस चीज की अलामत समझा जाता है? डिप्रेशन की अलामत। वो किस चीज की आवाज है जो 24 घंटे पूरी दुनिया में सुनाई देती है? अजान की आवाज। आटा गूंथते वक्त कौन सी गलती करने से घर से बरकत खत्म हो जाती है? सर पर दुपट्टा ना लेने से। क्या आप जानते हैं नंगे सर वॉशरूम जाने वाली लड़कियों के साथ क्या होता है? शयातीन हमला करते हैं। कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत में किस मसले का जिक्र किया गया है? कर्ज की अदायगी। किन दो बातों में हसद करना जायज है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो दौलत को राह हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो उसके जरिए से फैसला करता हो और लोगों को उस हिकमत की तालीम देता हो। ऐसी कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत करने से भी बीमारी दूर होती है? सूरह फातिहा। बताइए वो कौन सा अमल है जिसे करने से 2 हज का सवाब मिलता है? दो लोगों में सुलह करवाना। क़यामत के दिन कौन से लोगों को चींटी की शक्ल में उठाया जाएगा? तकब्बुर करने वाले को। बताएं कि जिन्नात को सबसे ज्यादा कौन सा दरख्त पसंद होता है? बेरी का दरख्त। किस वक्त बीवी को शोहर के माल से खर्च करने का सवाब मिलता है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर औरत अपने शोहर के माल से कुछ खर्च करे और उसकी नीयत शोहर की पूंजी बर्बाद करने की ना हो तो उसे खर्च करने का सवाब मिलेगा और शोहर को भी उसका सवाब मिलेगा क्योंकि उसने कमाया है। और खजांची का भी यही हुक्म है कि एक का सवाब दूसरे के सवाब में जरा बराबर भी कमी नहीं करेगा। किस इंसान को सदका देने से आपको सबसे ज्यादा सवाब मिलता है? गरीब रिश्तेदार को। क्या आप जानते हैं कौन सी जुबान दुनिया की खालिस तरीन जुबान है? अरबी जुबान। किस इंसान से अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन बात नहीं करेंगे? एहसान जतलाने वाले से। इंसान किससे मिलने जाए तो उसका रास्ता मुसलसल जन्नत का रास्ता बन जाता है? मरीज से।
वो कौन सी सूरा है जिसका एक रकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? सूरा मुज़म्मिल। वो कौन सा काम है जिसको किए बगैर औरत का घर से बाहर जाना मना है? पर्दा। आपके घर की वो कौन सी जगह है जो आपको बीमार करती है? इंसान के घर की वाहिद जगह जो इंसान के लिए तरह तरह की बीमारियों का बायस बनती है वो जगह बैतुल खला है, क्योंकि बैतुल खला में खबीस जिन्नात का ठिकाना होता है और दुआ ना पढ़ने वाले को ये गलीज चीज़ें मुतासिर करती हैं। 90% रूहानी और 50% जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक सिर्फ बैतुल खला से है। इनसे बचने के लिए बैतुल खला की दुआ पढ़नी ज़रूरी है। वो कौन सा गुनाह है जिसे करना अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? गीबत करना। कुरान मजीद में लालची इंसान की मिसाल किस जानवर से दी गई है? कुत्ते से। क्या रोजे की हालत में बेहोश होने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। जब अल्लाह नाराज होता है तो कौन सी बीमारी आती है? ईमान की बीमारी यानी ईमान का कमजोर होना और इंसान का दीन से दूर हो जाना। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे दीन से दूर कर देता है और जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसे दीन के करीब कर देता है। लिहाजा अगर कोई इंसान दीन से दूर है तो उसे सोचना चाहिए और फौरन अल्लाह से तौबा करे। वो कौन सी बीमारी है जो इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है? हसद की बीमारी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने किस चीज का साया किया था? बेलदार दरख्त का साया। वो कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत करने से कब्र रोशन होती है? सूरह मुल्क। खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से कौन सी बीमारी लाहक होती है? हड्डियों की बीमारी। मौत के अलावा किस वक्त इंसान के जिस्म से रूह निकाल ली जाती है? नींद के वक्त। क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में शराब को किसकी माँ कहा जाता है? बुराइयों की। कौन सी नमाज पढ़ने वाले को बगैर हिसाब जन्नत में जाने की बशारत है? तहज्जुद की। किस जानवर को घर में पालने से इंसान के माल और दौलत में बरकत होती है? बकरी को। नींद में अचानक झटका लगना किस बात की तरफ इशारा करता है? नींद में अचानक झटका लगना एक फितरी अमल है और इसके बारे में इस्लाम में कोई ख़ास हुक्म या तशरीह नहीं है। ताहम अगर आपको कभी इस तरह का झटका महसूस हो तो बिस्मिल्लाह या आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें ताकि अल्लाह की हिफाजत में रहें। क्या आप जानते हैं मकड़ी के नाम पर किस सूरत का नाम दिया गया है? सूरा अंकबूत।